Shakzi, can you hear me now? Hello, Amar. Good evening. Yes, we can hear you loud and clear. So we have Okay. today's session on chart patterns. So Amar Ali is one of the research analysts at our Stockage, organization, and he's one of my favorite when it comes related to the chart pattern and understanding the technical. To be very honest, and I even like in often in my presentation, I always convey to listeners that that you can always just check the post which is done by Mr. Amar. You can just even follow that, so he's a blue tick analyst. So if you wanted to ask any question, so you can post your question in the technical club group if you are a club user. But yes, you necessary, it is not required that you have to tag him. You can just post your question in the technical club, and any of the research analyst will surely help you. So Amar, like, we look forward to have a great session on chart pattern. So over to you. Yeah, thank you And so much, today Swati. Amar will be talking in two languages, English and Hindi. So हम इंग्लिश में आइडियली ये सेशन करेंगे. Over to you, Amar. ठीक है, so let's start. So before starting the session, like मैं हमेशा एक बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ, how many of you are doing the session for the first time and how many are doing it for the second or third or fourth time? Just tell me, inform me on the chat so that accordingly I can take the session. Please reply. Okay, Javed ji for the third time. Okay, first time. Sham ji second time, first time, second time. Kamlesh ji first time. Okay, first time. Shantanu ji first time, first time. Shiva ji fourth time. GL. Divesh ji first. Kapil ji first time, 10th time. Second time, first time. Okay. Prithviraj ji second time. Gopi ji first time. Mohammad Abdul ji recently took this subscription. Okay, that is means you are doing it for the first time. Rajkumar ji for the first time. Okay. So there is a mix of people, those who are doing first week of this series. Jignesh ji, okay, for the first time. Okay. So welcome to all of the participants and those who are coming for the first time, especially to them because they are not aware of what this chart patterns, and those who are doing it for the second, third or fourth time, it could be a revision for them because I'll be repeating the same things which I have already done. Okay. So maybe you may not find something new. Okay. It may be old things because I'm doing I have to start from the basics for the participants who have joined very recently, because for them, I have to start for the, from the basics, right? Okay. Sound is very low. Okay. I'll just try to be bit loud. Okay. So without wasting time, let's start. Okay. So what is this chart patterns? Okay. And trading with chart patterns. As you know that there are different ways of trading in the market, right? And mainly they are classified into two parts. That is, actually I can say three parts. That is fundamental analysis, technical analysis, and the combination of both, that is called techno funda. It means it's combining technical as well as funda, that become a techno funda. So these are the three types of analysis which are happening in the market. Okay. And traders and investing are relying on these three major forms. Okay. So what is chart patterns? Chart patterns comes under technical analysis. Okay. It is not related with fundamental analysis. It is technical analysis, the part of technical analysis. Okay. And technical analysis is based, on past history. Okay. Past history and the price. Okay. The main funda of technical analysis is demand and supply. Okay. Demand supply, by which we can read the price and human psychology. Whenever the price or chart is forming, there is a human psychology is there in the chart. What the perception of the investors and traders are, it's reflected in the chart. कहने का मतलब ये है, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक ट्रेडर क्या सोच रहा है, एक इन्वेस्टर क्या सोच रहा है उस प्राइस के बारे में, वो अभी चार्ट पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो चार्ट पैटर्न इज अ डायरेक्टली अ स्टडी ऑफ psychology of all the participant in the market, right? And we say that in trading or investing, psychology plays a major role in the market. Okay, we said that 80% is psychology and 20% is the strategy. तो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही मार्केट चलता है, ठीक है, और 80% इज द साइकोलॉजी एंड 20% इज द स्ट्रेटजी. तो मीन साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that's why technical analysis has a very strong footing, in the world of investing, because
human psychology never changes and it remains the same for a large number of group of people. बहुत लोग एक ही जैसा सोचते हैं, ठीक है, तो वो सोच जो है आपकी और हमारी उस पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे वो पैटर्न्स बनते हैं। और देखा ये किया है कि पैटर्न्स जो है रिपीटेड है। अपने सोचते हैं कि अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हर साल गर्मी में एक बार स्टॉर्म साइक्लोन आता है, ओके, हर साल बहुत जब हीट वेव्स आ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो एक बारिश एक बार होती है, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। सो व्हाट व्हाई दैट एक्सपेक्टेशन इज कमिंग, बिकॉज ऑफ द पास्ट। अपने ने पास्ट में ये देखा है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो एक बारिश आती है जो हम लोग को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वैसे ही इन टेक्निकल एनालिसिस दे हैव बीन सर्टेन चार्ट पैटर्न बिहेवियर, जो पैटर्न फॉर्म करते हैं जिससे अपने ये एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि ऐसा 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 इतनी बार हुआ है, लास्ट 50 इयर्स में ये इतनी बार ऐसा हुआ है, तो इस बार भी ऐसा होगा। दैट इज एन एक्सपेक्टेशन। हो सकता है इस बार नहीं भी हो, बट अपना प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो एक मैं सिंपल लैंग्वेज में एक आपको रिलेट करना मांग रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। दिट इज अ वेरी लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब आता हूं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न्स के पार्ट में। तो चार्ट पैटर्न्स दो तरह के बनते हैं, दैट इज एक होता है आपका रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, और एक होता है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न, वन इज रिवर्सल पैटर्न एंड वन इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो व्हाट इज रिवर्सल पैटर्न एंड व्हाट इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न, और इनके क्या क्या नाम है, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे बनते हैं, इनसे अपने कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, और कैसे इससे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अपने निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉकेज ऐप, राइट। तो मैंने जैसे कहा कि इसमें आपके ये देखिए चार्ट पैटर्न्स, ये थ्योरी पार्ट है, जस्ट मैं आपको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे आपको पीपीटी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। मेरा रिक्वेस्ट है दैट यू गिव मोर अटेंशन टू व्हाट आई एम स्पीकिंग रादर देन ये पीपीटी पे ध्यान देना, ठीक है। तो पीपीटी बिकॉज आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी। अगर आप कुछ पार्ट मिस कर दिए हैं, आप वापस से सुनना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हैं, ओके। तो तो ज्यादा बेटर होगा कि लाइव सेशन में अगर concentrate kar, and if you have any questions you can write it on the chat, and after completing this session or in the mid of the session also I'll go to the question round and I'll try to answer all the questions, okay. So what is chart pattern? A cumulative movement of stock price in a way that forms distinctive price on the technical charts are known as chart patterns, ठीक है। It not only help us to predict future price movement but also its price target। तो अपने को ये future price movement कि आगे का इसका क्या प्राइस मूवमेंट होगा अपने ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अपने इससे टारगेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा चार्ट पैटर्न आपका कंटिन्यूएशन या रिवर्सल, ये दो पैटर्न बनते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ रिवर्सल पैटर्न? रिवर्सल पैटर्न मींस रिवर्स कर रहा है। कोई भी अपना ट्रेंड, अभी का जो ट्रेंड है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, अगर वहां से घूम के नीचे गिरता है, अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड से घूम के नीचे गिरता है, दैट इज अ रिवर्सल ट्रेंड। और या फिर डाउन ट्रेंड, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा था, अब वो घूम के एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड रिवर्सल। मतलब ये अप की तरफ रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्सल हो रहा है। तो रिवर्सल आपका अप ट्रेंड में भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, ठीक है। अप ट्रेंड में रिवर्सल होता है तो वो बियरिश पैटर्न होता है, और डाउन ट्रेंड में रिवर्सल होता है तो वो बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल, ओके। नाउ कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न ये होता है जो प्रायर ट्रेंड था, अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, वो कुछ टाइम का ब्रेक लेता है, समय, एक रेस्टिंग पीरियड लेता है, एंड वापस अपना जो उसका पुराना ट्रेंड था उसको फॉलो करने लगता है, राइट। सपोज द स्टॉक वाज ट्रेंडिंग अप, वो एक अप ट्रेंड में जा रहा था, कुछ टाइम उसने एक रेंज में ट्रेडिंग करने लगा, स्टॉक ने छोटा सा कंसोलिडेशन होने लगा, प्राइस एक रेंज में जाने लगा, स्टॉक की प्राइस मूवमेंट रुक गई एक रेंज में, बट वापस से ये वो रेंज को तोड़ के वापस से ऊपर जाने लगता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न। एंड इट कैन हैपन इन डाउन ट्रेंड मार्केट ऑल्सो, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, प्राइसेस डाउन जा रहे थे, ओके, डाउन जाते जाते एक रेंज में जाके ट्रेडिंग करने लगे, थोड़ा ऊपर गए, एंड वापस अगेन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ओके। तो वापस ये डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। तो अप ट्रेंड का भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, डाउन ट्रेंड का भी कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स बने हैं जो हम लोग को बता सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा, या अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा, या अप ट्रेंड का रिवर्सल होगा, या डाउन ट्रेंड का रिवर्सल होगा। तो पूरा सेशन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो अपने देखते हैं, राइट। तो इन, so what is psychology behind the chart patterns?
इट रिफ्लेक्ट्स द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इन अ यूजुअल फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट चार्ट। तो स्टॉक प्राइस में बाइंग है या सेलिंग है, ये कैसे देख सकते हैं आप? एक विजुअल फॉर्मेट्स में प्राइस का चार्ट देख के, वो आप देखेंगे एक रेड कैंडल, बड़ी कैंडल आई है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि इसमें सेलिंग वाली कैंडल है। ग्रीन बुलिश कैंडल आई है तो आप देख के बता पाएंगे कि ये बाइंग कैंडल है। तो एक विजुअल पूरी पिक्चर जो बनती है उससे अपने बता पाएंगे कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, बाइंग का पैटर्न बन रहा है या सेलिंग का पैटर्न बन रहा है। एज वी ऑल नो प्राइस इज सुप्रीम इन टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का मेन फैक्टर क्या है? प्राइस एंड वॉल्यूम। अपने जैसे बोलते हैं लैंग्वेज में, भाव भगवान है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस। प्राइस क्या बोल रहा है, ठीक है। बहुत फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो है वो डेटा देखते हैं कि कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या सेल्स है, उसका क्या अर्निंग्स पर शेयर है, ओके, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। सो बहुत से अदर फैक्टर्स है, रेवेन्यू क्या है, तो ये सब चीज देखते हैं। बट जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न रीडिंग करते हैं, उनके लिए प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि भाई प्राइस क्या है, वही उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि इसका आगे का क्या होगा, ठीक है। सो एज वी नो प्राइस इज द सुप्रीम इन टेक्निकल एनालिसिस, hence it can be assumed that price is the only factor that guides traders perspective on the next move। मतलब प्राइस ही ट्रेडर का नेक्स्ट मूव क्या लेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी प्राइस, राइट। सो चार्ट पैटर्न इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ मास साइकोलॉजी एंड मार्केट पार्टिसिपेंट रिपीटेड इमोशंस ऑफ फियर एंड ग्रीड। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मास साइकोलॉजी, जो मास की जो साइकोलॉजी है, मेजर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जो है उनकी क्या सोच है, दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दी प्राइस चार्ट पैटर्न्स, ओके। रिपीटेड इमोशंस, ये बनते क्यों? बार बार के एक जैसे इमोशंस आने की वजह से, ये बिकॉज ऑफ फियर एंड ग्रीड की वजह से ये पैटर्न्स बनते हैं, ओके। सो रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ओके, क्या होते हैं। सो नाउ देयर इज वन पैटर्न कॉल्ड ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अब ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ये 3 तरह का होता है: सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ascending triangle and descending triangle। There are 3 types of pattern. We call it symmetrical triangle, ascending and descending। तीनों का अलग अलग फॉर्मेशन और तीनों को आप कब कैसे यूज करना है वो आपको समझाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकाला जाता है, ठीक है, राइट। सो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यू कैन सी देयर इज अ टू converging line। One is downward sloping line, ये आप देख रहे हैं, this is called downward sloping line, and there is one upward sloping line। ये एक upward sloping line है, ठीक है। This is upward sloping line and this is downward sloping line। So how this downward sloping line is formed? Downward sloping line कैसे बनती है? अपने lower highs से। lower highs मतलब ये जो high है is lower than this high and this high is lower than this high and this high is lower than this high। तो इन हाइज को कनेक्ट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलती है, राइट। और अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनती है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन वी कनेक्ट बाय हायर लोज। हायर लोज मींस ये जो लो है इज हायर देन दिस लो, राइट। दिस लो इज हायर देन दिस लो एंड दिस लो इज हायर देन दिस लो। तो ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो आप देख होंगे कि प्राइस का रेंज जो है आस्ते आस्ते छोटा होता जाता है, प्राइस का रेंज जो है आस्ते आस्ते छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक रेंज में चल रहा है, देयर इज इनडिसीजन, एक कन्वर्जिंग पैटर्न बन जाता है। और जब इस पैटर्न के ऊपर जाता है, स्टॉक बंद हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होता है, वी कॉल इट अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपसाइड ब्रेकआउट। इसको अपने बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हो गया, राइट। अगर ये ट्रायंगल के नीचे बंद हो जाता है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल डाउनसाइड ब्रेकडाउन, मतलब ये नीचे का। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको 2 चीज बताता है, ये अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा, डिपेंड ऑन इट्स स्टॉक किस लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है। अगर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अपने बाय करेंगे। और ये नीचे के ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो जाएगा तो ये बेयरिश हो जाएगा, तो अपने इसमें सेल करेंगे। होप दिस इज क्लियर टिल नाउ एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आपके क्वेश्चंस में जाऊंगा, ओके। तो जिनके क्वेश्चंस है प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड देन अगेन वी विल डिस्कस द ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए आपका अपसाइड ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, ओके, तो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ? स्क्यूज हो गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया, लाइक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मींस आपका बाइंग सेलिंग का जो वॉल्यूम है कम हो गया है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, पीपल आर नॉट अवेयर कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई क्या है? बैलेंस्ड है, डिमांड सप्लाई बैलेंस है। जब भी कोई चीज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है
दैट इज बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस। जहां पे डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है वहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सप्लाई से, वहां अपसाइड ब्रेकआउट हो जाता है, और जहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डिमांड से, वहां पे डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, और ये कितने एग्रेसिवली लोग बाय करना चाहते हैं, ऊपर के दाम में भी लोग बाय करना चाह रहे हैं, तो डिमांड इतनी बढ़ जाती है। ओके, तो लोग बहुत ज्यादा बाय करने लगते हैं, राइट। उस टाइम में लोग बहुत ज्यादा बाय करने लगते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। और जब बहुत ज्यादा लोग सेल करने लगते हैं एग्रेसिवली, कोई भी प्राइस में उनको सेल करके निकलना है, उनको लगता है कि स्टॉक एकदम बहुत नीचे चला जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी प्राइस में सेल करके दे जस्ट वांट टू एग्जिट, और वहां पे पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, देन पीपल स्टार्ट ऑफलोडिंग द पोजीशन और प्राइसेस गिरने लगते हैं। तो डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वी कैन सी अगर अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइस ऊपर जाएगा। ना ऊपर तो जाएगा ना, द चैलेंज इज अब कितना ऊपर जाएगा। मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, मैंने खरीद लिया, तो अब मैं इसको क्या करूं खरीद के, ये ऊपर में अगर जाता है तो मैं कहां तक वेट करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं कहां पे प्रॉफिट बुक करूं, राइट। तो प्रॉफिट बुक करने का इसका जो वो है टारगेट सेट करने का तरीका, यू हैव टू टेक द हाई। ये जो सबसे जो बड़ी डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, इस केस में आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है सबसे बड़ा, ठीक है, इस हाई और इस लो के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सपोज ये हाई आपका है 150 रुपीज का, दिस हाई इज 150, ओके, एंड दिस लो इज 120, ओके। सो 150 और ये है लो है 120, तो व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज 30 रुपीज। तो 30 रुपीज का डिफरेंस आया, राइट। तो अब मान लीजिए ये यहाँ पे जो प्राइस है से 140, ये ब्रेकआउट प्राइस है 140, तो ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर अपने 30 रुपीज ऐड कर देंगे, दैट इज 140, 140 प्लस 30 मीन्स 170। तो जो भी ब्रेकआउट प्राइस होगा, ठीक है, उसके ऊपर अपने जो डिफरेंस था उसको अपने ऐड कर देंगे, ये डिफरेंस है। ओके, सपोज ये 200 है, हाई 200 है और लो है 150, ओके, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा 50 रुपीज का, एंड सपोज ब्रेकआउट पॉइंट है 170 रुपीज, ओके। सो 170 प्लस 50, तो अपने को मिलेगा 220, ओके। तो 250 रुपीज का टारगेट हो जाएगा। तो ये तो हुआ टारगेट की बात। नाउ अगर मैंने स्टॉक ले लिया, ठीक है, बट वो नहीं चला, मेरे लेने के बाद नीचे गिरने लगा, तो मैं कहाँ पे निकलूं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्टॉप लॉस। मैं अपना कहाँ पे लॉस बुक करूं, राइट। तो मार्केट में अपने जब प्रॉफिट लेते हैं तो अपने को वी हैव टू बी ओपन फॉर टेकिंग लॉस ऑल्सो, दैट इज ओनली फॉर, मतलब अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है कि आप उसमें लंबे टाइम तक के लिए बने रहेंगे, बट फिर भी उसमें आपको कहीं अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मे बी द स्टॉप लॉस में बी लॉन्गर, राइट। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, टारगेट अचीव का वेट करेंगे। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, मेरा स्टॉक लेने के बाद स्टॉक उल्टा पड़ के नीचे जाने लगा, तो अपने कहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करेंगे। जनरली जो पैटर्न्स होते हैं, दे डोंट गिव स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस देते नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड द स्टॉप लॉस, अपने को निकालना पड़ेगा। सो एज पर यू नो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट रिस्क कैपेसिटी। आपका रिस्क कैपेसिटी लेने का अलग वो हो सकता है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, कोई कम ले सकता है, कोई और भी ज्यादा ले सकता है, कोई और भी कम रिस्क ले सकता है। तो स्टॉप लॉसेज आर मेनली बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी लॉस सहने की क्षमता कितनी है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट स्टिल दे आर वेज कि आप एक मिनिमम तो लॉस लेना ही होगा, एक मिनिमम वे है जिसकी वजह से आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो पहला वे है यू कैन टेक स्टॉप लॉस विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अगर आपका टारगेट 50 रुपए का बन रहा है, तो आप अपने बाइंग से उसका 25 रुपए का स्टॉप लॉस, 50% का स्टॉप लॉस मीन्स 1:2। अगर 50 रुपए का टारगेट है तो स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, मैं बाइंग प्राइस से 25 रुपए नीचे। अगर 100 रुपए का टारगेट है तो मेरा टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरे बाइंग प्राइस से 50 रुपए नीचे। अगर 200 का टारगेट है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, बाइंग प्राइस से 100 रुपए नीचे। तो दैट इज द मिनिमम स्टॉप लॉस 1:2। मतलब मैं 100 रुपए कमाने की सोच रहा हूं तो मैं 50 रुपए गंवाने की सोच रहा हूं, तो ये है, ठीक है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन रखेंगे तो ये क्या होता है, आपको फेवरेबल होता है। अगर आप 10 ट्रेड्स भी ऐसी लेंगे, 10 ट्रेड्स जिसमें से आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 1:2 रखा है,
तो अगर आप 50% भी राइट पढ़ेंगे, इवन 50% टाइम्स इफ यू आर राइट, अगर 10 ट्रेड लेते हैं उसमें से 5 आपकी राइट हुई है और 5 ट्रेड रॉन्ग हुई है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, देन ऑल्सो यू विल बी प्रॉफिटेबल, तब भी आपका प्रॉफिट आएगा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर आप काम करेंगे। तो दैट इज द वन वे ऑफ पुटिंग अ स्टॉप लॉस। दूसरा है कि ब्रेकआउट कैंडल, अभी मैं आपको स्टॉकेज ऐप का भी चार्ट दिखाऊंगा जिसमें से ये रिसेंट अभी पैटर्न बने हैं। ओके तो दूसरा है ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। ओके जब जो कैंडल का ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के नीचे 1% का फिल्टर देके यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, सपोज यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है तो इस कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। तीसरा क्या है, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर स्टॉक बंद हो जाता है देन आई विल एग्जिट। ओके सो नीचे के ट्रेंड लाइन में बंद हो जाता है देन आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। So first way you can keep a risk reward ratio of 1:2. Okay, you can place a stop loss below the breakout candle by giving some filtration, or you can give a you can put a stop loss below this trend line. नीचे की ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बंद हो जाता है तब आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, राइट। बट बट आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, 1:2 का ऐसा स्टॉप लॉस रखिए जिसमें 1:2 होना चाहिए। अगर 1:2 बहुत मुश्किल हो या नहीं रख पा रहे, एटलीस्ट 1.5 का तो रखना ही चाहिए। ठीक है, 1:1.5 दैट इज द मिनिमम बेंचमार्क आपको मेंटेन करना होगा। ओके बट आई विल सजेस्ट 1:2, राइट। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन राउंड में जाता हूँ, किसी को भी टारगेट स्टॉप लॉस सेट करने में कोई प्रॉब्लम है या, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द क्वेश्चन एंड सी हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम so that I can reply. Okay, so this is for swing trading or intraday. This is for swing trading, Chandraji. Okay, okay. Which time frame is better for technical analysis of chart? You can use daily time frame. Okay, you can use daily. और आपका लॉन्गर पीरियड के लिए करना चाहते हैं तो वीकली भी कर सकते हैं। अभी स्टॉकेड में जो चार्ट पैटर्न्स आ रहे हैं दैट इज ऑन डेली बेसिस के पैटर्न में। ओके अशोक जी, ओके देयर आर सम क्वेश्चंस कि मैं इसको एक बार एक मिनट में, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, होप एवरीबॉडी कैन सी। अब कुछ लोगों का डिमांड था फॉर द फुल स्क्रीन, सो आई हैव डन इट इन द फुल स्क्रीन फॉर्म। ओके ओके चार्ट पैटर्न यूज लाइन चार्ट, आप लाइन चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप कैंडल में भी यूज कर सकते हैं, बार में भी यूज कर सकते हैं, एनी कोई भी पैटर्न में आप यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम, अपने जो भी स्टॉक्स का जो टाइम फ्रेम है दैट इज अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर में अपना टारगेट या स्टॉप लॉस अचीव हो जाना चाहिए। ओके कमलेश जी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। ओके कैन यू एक्सप्लेन टारगेट इन इंग्लिश? ओके आई विल रिपीट, वीमा जी। सर चार्ट यूज ट्रेलिंग पोजीशन साइज प्लीज। शिव शंकर जी, पोजीशन साइज डिपेंड्स प्योरली ऑन यू। किसी का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो किसी का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, किसी का 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो पोजीशन साइज ये आपका इंडिविजुअल है, बट मेरे हिसाब से आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपका जितना भी पोजीशन है उससे 5% से ज्यादा एक स्टॉक में मत लगाइए। ओके दैट इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। बाकी आप जैसे 1 लाख है, किसी का टोटल फंड 1 लाख है तो उसका 5% कितना होता है? 5,000। ठीक है, तो आप 5%, 10%, मैक्सिमम 10% एक स्टॉक में लगा सकते हैं। ठीक है, किसी का 50 लाख है वो अपने 5 to 10% लगा सकते हैं। ठीक है, सो पोजीशन साइजिंग डिपेंड्स प्योरली ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, आप कितना ले सकते हैं पोजीशन। ठीक है, बट जनरली 5 से 10% के ऊपर एक स्टॉक में पैसा पूरा पैसा मत लगाइए। चार्ट पैटर्न्स प्रीमियम सर्विस में अवेलेबल है, दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम द कस्टमर सपोर्ट टीम, दे विल इन्फॉर्म यू। ओके कि किसमें मिलता है। Bhima ji, I'll explain target in English. No worries. Is it advisable to trail your stop losses gradually to minimize risk in case of stocks move in a direction? Yes, Jignesh ji, you should always, it is always advisable to put a trailing stop loss. आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बुक
वो करने, ताकि आपके प्रॉफिट इरोड नहीं हो जाए। ओके, एक्यूरेसी के लिए बेस्ट इंडिकेटर यूज्ड, बेस्ट इंडिकेटर अगेन आप यूज कर सकते हैं, इसमें वॉल्यूम लगा सकते हैं, वॉल्यूम के साथ साथ आप आरएसआई एंड आरएस का इंडिकेटर लगा सकते हैं। यू कैन आरएस अगर पॉजिटिव है, आरएसआई 50 के ऊपर है, ओके, एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, तो दैट विल गिव यू अ हायर चांस ऑफ अ राइट ब्रेकआउट। ओके, okay, so I think most of the question I have covered. Only one thing that I have to repeat the target in English. Okay, so for Rima ji, I'm repeating how to find the target. Okay, suppose this point is 200 rupees, that we have to calculate the distance, vertical distance between the tallest candle, tallest distance between these two lines. Okay, and the tallest distance between these two lines we can see is this line. Okay, so what is the high of this line? Suppose the high of this line is 200. Okay, the high of this line is 200 and low of this line is 150. So what is the difference between 200 and 150? That is 50 rupees, right? 50 rupees is the difference. Okay, and now suppose the breakout point, this is 170. Okay, so 170 plus 50, I'll add 50 points to this breakout point. Okay, 170 plus 50, that comes to 220, right? So 220 will be my target. Okay, Bhima ji, clear? Is it clear for you now? Calculating the target? Okay. One question, Sadat ji, can we use the RS model of Vivek sir, which also involves RSI super trend and moving average in the stock? Does it work on the same principle? RS, RS model is a very nice model, okay, because it suggests you, all the bullish things. RS is positive. First, you have to understand what is RS. RS is something which tells you RS 55. Vivek sir use, RS 55. It means the relative strength. It means we are comparing the strength from the benchmark index. If RS is positive above 0, it means over the past 55 days, okay, the stock is outperforming the index. Okay, that is if it is in positive. So that is giving you a first strength. And super trend is also buy. Super trend is also bullish. And RSI is trending up, means it is above 50. So all these three indications are giving you a strength in the stock. And if there is also a breakout, and all these three factors are also aligning with this breakout, so you can rely on those kind of breakout. Okay, Sadat ji, the confidence will go up and the chances are higher that with these combination, the stock will outperform other stocks in the same category. Suppose मेरे पास in the same category, मैं बोलने का मतलब ये है, suppose आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, अपसाइड ब्रेकआउट में चार स्टॉक्स आए हैं, राइट, बट उसमें आपको दिख रहा है कि विवेक सर का मॉडल भी एक में ऐड है, जिसमें कि आपका RS 55 पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ओके, एंड आपका RSI भी ट्रेंडिंग अप है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट भी है, राइट। तो क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा वो स्टॉक में लेने का, उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, चांसेस हायर है कि वो स्टॉक ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू अदर स्टॉक। आपका सेम चार्ट पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ही आया है, बट उसमें आपका RS नेगेटिव है, RS 0 है, ठीक है, और RS भी आपका RSI भी 50 के नीचे है, आपका सुपर ट्रेंड भी बियरिश है, ओके, नेगेटिव है, और उसमें चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो कंपेयर टू जो मैंने आपको RS विवेक सर का RS मॉडल के साथ का है, उसके साथ आप देखेंगे तो वो बेटर होगा, जिसमें आपका विवेक सर का RS का कॉम्बिनेशन है। क्लियर सादत जी? ओके, I mean you can use this Nasdaq stocks US. See, technical analysis आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इट्स ग्लोबली। आप Nasdaq के स्टॉक्स में, आप S&P में, आप US UK मार्केट में, आप चाइना के मार्केट में, ओके, एशिया की, ग्लोबली आप टेक्निकल एनालिसिस को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट वहां का RS आप कंप्लीट करेंगे तो वहां के इंडेक्स से आपको करना पड़ेगा। दैट इज विद द US स्टॉक्स, इफ यू आर कंपेयरिंग यू हैव टू कंपेयर इट विद द US का बेंचमार्क इंडेक्स के साथ, ठीक है, ओके। सर ट्रायंगल बी बुलिश, दिस, ये ट्रायंगल अभी जो मैंने एग्जांपल में दिखाया ये बुलिश है, ठीक है, अपने बेयरिश पे भी दिखाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ
अपने स्टॉकेज ऐप में, जिसमें आपको रियल टाइम में पैटर्न्स दिखते हैं. सो आई वांट टू शेयर द, आई एम चेंजिंग द स्क्रीन टू स्टॉकेज का ऐप. जस्ट वेट. स्टॉकेज का ऐप सबको दिख रहा है? ओके, होप सबको दिख रहा है. ठीक है, तो आई हैव चेंज द स्लाइड. नाउ इसमें यू कैन सी देयर इज द चार्ट पैटर्न सेक्शन. ठीक है, अंडर प्रो एनालिटिक्स देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड चार्ट पैटर्न्स. तो इसमें अपने क्लिक करेंगे तो हियर यू कैन सी देयर इज अ ट्रायंगल पैटर्न. ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपने डिस्कस किया, तो अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल खोलता हूँ. तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी है, मेजर स्टॉक्स, रीसेंट एंड पास्ट, और यहाँ पे एक फिल्टर दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है. इंट्रो में आप देख सकते हैं इसमें कैसे इसको यूज करना है, इसका क्या मीनिंग है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सिमेट्रिकल ट्रायंगल. ठीक है, ट्रेंडिंग बाय सिमेट्रिकल ट्रायंगल. तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो देयर इज वन रीसेंट एंड पास्ट. ठीक है, रीसेंट एंड पास्ट में मतलब रीसेंट मींस जो अभी हाल फिलहाल रिसेंटली स्टॉक्स फिल्ट्रेशन में आए हैं. ठीक है, और पास्ट मींस जो आके इसमें से जा चुके हैं. ठीक है, जो इसमें आए थे और वो अभी पास्ट में चले गए, आइदर उनका टारगेट अचीव हो चुका है या उनका टाइम खत्म हो गया है, तो वो पास्ट में चले जाते हैं. राइट, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ रिसेंट में कौन कौन सा स्टॉक्स में क्या फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो ये रिसेंट है. ये ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल हुई है. ओके, सो यू कैन सी द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट यहाँ पे. तो ये अपसाइड ब्रेकआउट दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया है. तो अब यहाँ पे आप क्या क्या होगा, रूल है, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे. राइट, बाय करेंगे. तो मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बाय कर सकते हैं. राइट, और आप इसमें ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप रख सकते हैं, या इस ट्रेंड लाइन के नीचे. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से तो पहले अपने को टारगेट कैलकुलेट करना होगा. अगर ब्रेकआउट के हिसाब से आप करते हैं, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस कैंडल के नीचे कुछ फिल्टर देके आप स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, और लास्ट आप स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं. ठीक है, तो ये दीपक नाइट्रेट में आप देखेंगे कब फॉर्म हुआ था पैटर्न. ये फॉर्म हुआ था 10 अप्रैल को. प्राइस पॉइंट किस पॉइंट पे फॉर्म हुआ था, 2249.67 यहाँ पे फॉर्म हुआ था, और अभी एलटीपी चल रहा है 2271. ठीक है, तो ऐसे यू कैन सी सो मेनी पैटर्न्स हैव बीन फॉर्म. ये रिसेंट के अभी फॉर्म हुए हुए पैटर्न्स हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जैसे मैक्स फाइनेंशियल, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया. अच्छा, नाउ एनीबॉडी कैन कैलकुलेट द टारगेट फॉर मैक्स फाइनेंशियल. तो अपने एक बार कर लेते हैं प्रैक्टिस, इसका क्या टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस होगा. सो आई वांट दी टारगेट फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स. आई मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप लोग भी कीजिए. तो मैक्स फाइनेंशियल का टारगेट निकालते हैं. राइट, please request all the participants to calculate the target of Max Financial. तो जिनका जिनका टारगेट आ गया प्लीज चैट में आप लिख दीजिए. चंद्र जी ने कहा है 250 पॉइंट्स. आई थिंक चंद्र जी ने कहा है 250 पॉइंट्स. ओके, उमेश जी ने 1080. टारगेट मैक्स फाइनेंशियल सीम्स टू बी गोइंग डाउन. रीमा जी ने लिखा है 1200. ओके, दिनेश जी 1191. एनी मोर टारगेट्स?
I want more participation. शिव कुमार जी 1232, चंद्रशेखर जी 1290, प्रशांत साहू जी 1180. ओके, तो मैं भी अपना टारगेट शेयर कर देता हूँ. मेरा टारगेट आया 1212. 1212. उमेश जी 1280. माय टारगेट इज कमिंग टू 1212. ओके, जावेद जी 1237. ओके, अवध जी 1230. ठीक है, सो 1212 टारगेट मेरा आया. कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ. रीमा जी का भी टारगेट 1200 एंड आई थिंक पास में था. 1200. ओके, तो 1200, 1220, 1230 ये आसपास के टारगेट है जो कि राइट टारगेट्स है. 1200 से लेके इनफैक्ट 1200 से लेके 1220, 30 के जिनके भी टारगेट है, दिस आर द करेक्ट टारगेट्स. ठीक है, तो कैसे मैंने बताया, तो मैंने इसका हाई लिया. इसका हाई था, इसका हाई था 1067, राइट, 1067. और इसका लो था, इस कैंडल का लो मैंने देखा कितना था, 854. तो मैंने 1067 से 854 को माइनस किया, तो आई गेट 213 पॉइंट्स का डिफरेंस आया मेरे को. ठीक है, तो ये 213 पॉइंट्स को मैंने जो ब्रेकआउट पॉइंट था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 999, तो 999 में मैंने ये ऐड किया, तो आई गॉट अ टारगेट ऑफ 1212. राइट, होप क्लियर है सबको. सो ये टारगेट तो निकल गया, बट वी कैनॉट बी स्ट्रिक्ट विद अ टारगेट कि टारगेट तो मैंने निकाल लिया, तो अब ये टारगेट के साथ व्हाट विल बी अ स्टॉप लॉस. अब स्टॉप लॉस क्या होगा, राइट. तो मेरा यहाँ पे टारगेट अराउंड 215 रुपए का टारगेट है, तो मैं क्या स्टॉप लॉस रखूंगा. 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर मैं लेता हूं, तो व्हाट विल बी माई फर्स्ट स्टॉप लॉस. 1:2 के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस होगा प्लीज. अगर मेरा टारगेट 215 रुपए का है, तो मेरा टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा. एनी आंसर्स फॉर दिस. 760 वीमा जी का आया 760. सो 105, 106, 9, तो 215 का मैं आधा करूंगा. तो सपोज 108 से 110 पॉइंट का. ओके, MNR जी 105, 110, 105, 110 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा. तो अगर मैं 999 इंट्री पॉइंट है, तो 999 माइनस 110 मैं एक बार लेता हूं, तो 899. तो 889, 889, 890 ये सब जो है आपके करेक्ट स्टॉप है. ओके, सो 890, कोई 900 भी रख सकता है. ठीक है, तो 890 आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है. दैट इज 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से. ओके, तो ये हुआ मेरा 890 फर्स्ट स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, राइट. अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा इसमें. अब ब्रेकआउट कैंडल के लो के हिसाब से व्हाट विल बी द ब्रेकआउट. अब मैं अगर ब्रेकआउट कैंडल के लो के हिसाब से, जस्ट आई एम ट्राइंग टू शेयर द वेज ऑफ पुटिंग द स्टॉप लॉसेस, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग, कोई अगर 100 का स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता है और भी कम स्टॉप लॉस लेना चाहता है, तो उसके लिए भी वो क्या स्टॉप लॉस रख सकता है. तो आप लोग मुझे बताइए, ब्रेकआउट कैंडल के लो के हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होगा. एनी आंसर्स. नाइन एट्टी, 980, 960, वीमा जी 960, शिव कुमार जी 980, यू पाटिल जी 980, चंद्रशेखर जी 980, अवध जी 940, 975, अमित कुमार जी ओके, अभिजीत जी 975, दिवेश जी 950. ओके, वेरी गुड. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव राइटली आंसर्ड. तो ये कैंडल का जो ये मेरी हुई ब्रेकआउट कैंडल, दिस कैंडल इज कॉल्ड ब्रेकआउट कैंडल. ठीक है, तो इसका लो मैंने देखा था क्या है, 976.75. ठीक है, और इस कैंडल उसके जस्ट बगल में एक और कैंडल है, उसका लो क्या है 974. और मैं यहाँ देख रहा हूँ एक गैप भी है, तो मैं 974 के नीचे कहीं भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ. 974 के नीचे
अब कोई 950 रखना चाहता है वो 950 भी रख सकता है, 940 रखना चाहता है 940 भी रख सकता है, ठीक है। तो ये, या कोई गैप, इस गैप के नीचे रखना चाहता है वहां पे भी रख सकता है। तो मिनिमम आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो 974 के नीचे होगा, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे 974। अगर आप इसमें आप कुछ आधा 1% का फिल्टर दे सकते हैं तो 960 भी रख सकते हैं, ओके। सो ये these things are very subjective, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग द स्टॉप लॉस, ठीक है, दैट इज ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। नाउ व्हाट इज द थर्ड वे? थर्ड वे मैंने कहा था, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो जाता है, आपका ट्रेंड लाइन के नीचे, एनीबॉडी द स्टॉप लॉस फॉर द थर्ड लाइन, थर्ड स्टॉप लॉस आप क्या रख सकते हैं? एंड दैट इज द लास्ट स्टॉप लॉस। यू पाटिल जी 970, शिव कुमार जी 930, वीमा जी 840, ओके, वीमा जी 840, 858, अजय जी 848, शिव कुमार जी 930, ओके, MNR जी 867, अजीत जी, जावेद जी 840, ओके, हितेश कुमार जी 910। तो डिफरेंट स्टॉप लॉसेस आर कमिंग। तो यही है, मार्केट में यही सेंटीमेंट चलता है, जैसे आप लोग अलग अलग स्टॉप लॉस बता रहे हैं तो वैसे ही हर पार्टिसिपेंट का अलग अलग स्टॉप लॉस होता है, राइट, 110। तो यहाँ पे मैं देखा था ये कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो है 932, ठीक है। अगर इस कैंडल के लो के नीचे बंद हो जाता है तो मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप 929, सॉरी 920, 930, 910 आप ये स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं। आपका जितना ज्यादा रिस्क है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मिनिमम आपको क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, इसमें मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा इस कैंडल का लो, दैट इज 932, ठीक है, ओके। तो शिव कुमार जी 932, परफेक्ट, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे अगर बंद हो जाता है तो आप यहाँ पे, दैट इज द थर्ड वे। तो दिस इज हाउ यू मैनेज योर ट्रेडिंग। एक बार ट्रेड लेना तो बहुत आसान है, मैंने एक बार बाई किया ले लिया। अब ट्रेड मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग अ ट्रेड। आप अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये आपके ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर है या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, द ट्रेड इज एक्टिव फॉर दिस, ठीक है, द ट्रेड इज एक्टिव। तो देखिए ब्रेकआउट देने के बाद एक रेंज में ही है, ब्रेकआउट के आसपास में ही है, तो ट्रेड इज स्टिल एक्टिव इन दिस केस, ओके। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, इसमें जो है वसंत जी, ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली बन के आई है। आपका जब भी कोई पैटर्न बनेगा यू विल गेट एन अलर्ट कि ये पैटर्न बन गया है, ठीक है। आप स्टॉकेज में जाएंगे वो दिखेगा, ये ऑटोमेटिक बन के आती है, वी हैव मैनुअली ड्रॉ नहीं की है। आप कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अपना ट्रेडिंग व्यू या investing.com में जाके आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं अपने से भी, राइट। और इसमें भी अपना पैटर्न में भी ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइंस का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप अभी ये पैटर्न समझ गए हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, देन it will be very easy for you to understand the next pattern which I'm going to discuss, that is ascending triangle pattern and descending triangle pattern. So before going to those patterns, I want to see if there is any question based on symmetrical triangle pattern. अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन क्लियर टू दोज डाउट्स एंड मूव फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चंस, किसी का भी कोई डाउट है इस चीज में अभी सिमेट्रिकल पैटर्न में? जावेद जी बोल रहे हैं ऑल ओके, ओके, फॉर अदर्स प्लीज कंफर्म so that I want all the participants are, to fully take the advantage of this session and no one is left behind. Okay, तो सबके doubts clear होना चाहिए। अमित जी thank you for confirming, अजय जी thank you, शांतानु जी okay thank you for confirming, okay, okay, पुरंजीत जी thank you, सादत जी thank you, सबका मेनली क्लियर है। So I get a green signal to move to the next time. तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसमें अलग अलग स्टॉक के डिस्कशन की बात हो रही है, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इफ आई स्पेंड मोर टाइम ऑन एनी वन पैटर्न देन आई विल नॉट बी एबल टू कवर अदर पैटर्न्स आल्सो, ठीक है। सो आई हैव टू कवर अदर पैटर्न्स आल्सो। तो ऑलरेडी काफी टाइम लग गया एक पैटर्न को समझने में, ओके। कपिल जी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? हेलो, इज माय मैसेज बीइंग डिलीवर्ड? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आई थिंक इट मे बी लॉस्ट इन अदर क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा फ्लडिंग ऑफ क्वेश्चंस हो जाने के बहुत ऊपर चला गया हुआ क्वेश्चन,
तो एक बार वापस से आप इधर टाइप कर दे तो मेरे सामने आ जाएगा। कपिल जी, कैन दिस ओनली बी बुलिश और कैन इट बी बियरिश? इट कैन बी बियरिश ऑल्सो कपिल जी। मैं देखता हूँ बियरिश का कोई एग्जाम्पल अपने को मिल जाए। लेट मी सी। हाँ, तो ये पैटर्न यू कैन सी कपिल जी, इंडिगो ने बियरिश पैटर्न बनाया था। तो मैंने कहा ना, जब भी अगर ये ब्रेकआउट नीचे की लाइन में बंद हो जाएगा तो वो बियरिश पैटर्न हो जाएगा। यू कैन सी द इंडिगो पैटर्न, इट हैज गिवन अ बियरिश ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद यू कैन सी द स्टॉक हैज वेंट डाउन, काफी अच्छा नीचे गया। ठीक है। शिव कुमार जी का क्वेश्चन है, एक पैटर्न कितने दिन तक वर्क करता है? तो जनरली अपने ने टाइमलाइन रखा है 3 इयर्स, सॉरी 3 मंथ्स। ओके, इट मे टेक लॉन्गर टाइम ऑल्सो, और इट कैन अचीव द टारगेट इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अपने में देखा कि 15 दिन में भी कभी टारगेट अचीव हो जा रहा है, कभी 1 महीने के अंदर में भी हो जा रहा है, कभी 3 महीना भी लग रहा है, कभी 3 महीने से ज्यादा भी हो जा रहा है, बट टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, वो एक रेंज में रह जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई एक फिक्स नहीं है। तो 1 to 3 मंथ के अंदर में अचीव हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। मोहन जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सक्सेस रेट? तो सक्सेस रेट ये कोई अपना स्टॉकेज का कोई सक्सेस रेट नहीं है। द सक्सेस रेट ऑफ रेंज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न हैज बीन रिसर्च्ड एंड हैज बीन सीन दैट इट इज फ्रॉम 65 to 70%। ठीक है, सक्सेस रेट 65 to 70% है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और सक्सेस रेट आपके बहुत से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर, अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन रेज किया सो दैट आई कैन डिस्कस, और मैं ये पहले भी डिस्कस किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सक्सेस रेट कैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अभी ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट अगर अप है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, राइट? ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है और उसमें कोई बुलिश पैटर्न मिल रहा है और वो आप ट्रेड्स लेते हैं, तो वो आपके फेवर में जाएगा एंड यू कैन इंक्रीज योर सक्सेस रेट। बट सपोज द मार्केट का ट्रेंड अप है और कोई डाउनसाइड का आपका आया है, डाउनसाइड ब्रेकआउट आया है, तो आप डाउनसाइड खेल में बट अगेंस्ट द मार्केट, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के साइड खेल में, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका रॉन्ग पड़ जाए, तो उसमें सक्सेस रेट कम हो जाएगा। सो जस्ट ब्लैंकली टेकिंग एनी चार्ट पैटर्न, अब बाकी ओवरऑल मार्केट कंडीशंस के साथ मिला के अगर लेंगे तो दैट गिव यू एन एज। okay, chart pattern itself is an edge, in stock market these patterns are unique and it is an edge in the market. But if you are aligning it with other factors in the market like overall market global markets के साथ इंडियन का अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उसके साथ आप चार्ट पैटर्न्स को अलाइन करके अगर ले रहे हैं तो वो आपको एक और एज के ऊपर एज देगा। okay? तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये जो सक्सेस रेट है डिपेंड करता है। तो चार्ट पैटर्न का सक्सेस रेट डिपेंड कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हो सकता है किसी के लिए 80 to 85% हो, बट हो सकता है किसी के लिए 40% भी हो जाए, राइट? कैसे? अगर किसी ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपसाइड ब्रेकआउट बाय किया है एंड द मार्केट बुलिश टाइम में, तो उसका सक्सेस रेट ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर मैंने ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप और मैंने बेयरिश साइड खेला है। ठीक है, कुछ पैटर्न्स तो होंगे ही स्टॉक्स में जिसमें बेयरिश पैटर्न भी बनेंगे। ठीक है, बट वहां पे क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है और लोगों का स्टॉप लॉस ज्यादातर हिट हो जाता है। तो आप अगर वैसा खेलेंगे तो आपके लिए वो हो सकता है सक्सेस रेट 40% हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स। आप कोई भी चीज को सक्सेस रेट को यू कैन नॉट मेजर इट ब्लैंकली। कोई स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि मैं ब्लैंकली बोल दिया कि 70% या 90% या 40% है। दिस सक्सेस रेट ऑल्सो डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ आई एम टेकिंग। तो जैसे कि मार्केट में कोई जो बहुत पैसा बना रहा है, मार्केट में आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भाई आपके लिए तो मार्केट बहुत अच्छा है ना? बट अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो मुझसे कोई पूछेगा भाई हाउ इज योर परफॉर्मेंस इन द मार्केट, मैं तो बोलूंगा मेरे लिए तो खराब है मार्केट, मार्केट में मत काम करो, अच्छी चीज नहीं है मार्केट। तो मैं जो कमाया नहीं कमाया मैं तो अगेंस्ट बात करूंगा, और जो मार्केट में सेम मार्केट में जो कमाया कोई तो कमा रहा है, वो तो बोलेगा दैट इट्स अ वेरी गुड मार्केट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिलेट। ठीक है, सो आई एम मूविंग टू दी नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, तो इंडिगो का बेयरिश, कपिल जी का जैसा क्वेश्चन था बेयरिश पैटर्न दिखाने का, तो मैंने दिखाया। ओके, सो नाउ असेंडिंग ट्रायंगल। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, सो यू कैन सी देयर इज असेंडिंग ट्रायंगल, इसमें भी आपका यहाँ पे पैटर्न्स दिया हुआ है, रिसेंट में अभी कोई पैटर्न नहीं आया है।
ठीक है, तो यू कैन सी इन दी पास्ट में कौन से पैटर्न्स आए थे। तो फास्ट में 12 जनवरी को आया, उसके बाद अभी तक कोई पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना नहीं इतने स्टॉक्स में। ठीक है, तो एलेम्बिक फार्मा आया था 12 जैन को एनएससी एक्सचेंज, ये प्राइस पॉइंट पे अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स चेक। सो यू कैन सी दिस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद द स्टॉक हैज वेंट अप शार्पली। आपने टारगेट्स को अचीव किया, अपना स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं किया, टारगेट्स को ओवर अचीव किया। ठीक है, और उसके बाद इट हैज गिवन करेक्शन और वापस ऊपर जा। तो अपने अगर यहाँ पे कहीं पे लिए हैं तो इट हैज ऑलरेडी अचीव दी टारगेट। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रायंगल होता क्या है आपको मैं बता दूं, जस्ट एक बार उसके लिए मैं आपको उसमें लेके जाता हूँ पीपीटी में। आई एम जस्ट स्विचिंग द स्क्रीन। असेंडिंग ट्रायंगल जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका अपसाइड या डाउन साइड बोथ साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। एंड दिस असेंडिंग ट्रायंगल कैन ओनली गिव यू अपसाइड ब्रेकआउट। ये सिर्फ अपसाइड ब्रेकआउट के लिए ही वैलिड है। अगर ये नीचे चला जाता है देन ये इनवैलिड हो जाएगा, राइट। सो इसमें क्या है, यू कैन सी देयर इज वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जैसा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में था, एंड देयर इज वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है। जैसे उसमें डिसेंडिंग लाइन थी एंड असेंडिंग लाइन थी, इसमें एक आपकी असेंडिंग लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यू कैन सी वन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये व्हाई दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज बीइंग फॉर्म्ड, बिकॉज द स्टॉक इज एवरी टाइम द स्टॉक इज रीचिंग दिस पॉइंट इट इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस एंड गोइंग डाउन। तो यहाँ पे जब सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और प्राइस नीचे जा रहा है, सेलर्स एक्टिव हो रहे प्राइस नीचे, फिर यहाँ पे लोअर लेवल में क्या है, लोग बाई किए जा रहे हैं। तो इक्वल हाइज बना रहा है यहाँ पे प्राइस, इक्वल हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। दिस लो इज हायर देन दिस लो, दिस लो इज हायर देन दिस लो, सो इट इज मेकिंग इक्वल हाइज एंड हायर लोज। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो है बैलेंस्ड है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई इज बैलेंस्ड। और यहाँ पे स्टॉक का क्या होता है, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाता है एंड स्टॉक गिव अ ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट। ठीक है, एंड वी कॉल इट इज अ बुलिश ascending triangle bullish breakout. So how we calculate the target? The same way, the target is calculated in the same way as we have calculated in symmetrical triangle. तो इसमें जैसे हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट का जो डिफरेंस निकाल के ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है, तो इसलिए आई एम नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस। स्टॉप लॉस अगेन इट इज सेम। ठीक है, आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये इसके अगर ये कैंडल ये लाइन के नीचे अगर बंद हो जाता है तो आप रख सकते हैं। एक और वे है, आप टाइम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि 2-3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड टाइम स्टॉप लॉस, और एक रेंज में तो वहां से निकल सकते हैं स्टॉक से। ठीक है, और अपना भी अगर एक टाइम हो जाता है तो स्टॉक जो है वो रिसेंट से पास्ट में चला जाता है। जब स्टॉकेज में भी आप देखें स्टॉक रिसेंट से पास्ट में चला गया है, देन ऑल्सो यू कैन एग्जिट। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम दी स्टॉक। ओके, क्लियर है सबको? ओके, सो सो ये एग्जांपल है पहले का जो मैंने पीपीटी में दिया, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट का। ठीक है, यू कैन सी द ब्रेकआउट ऑफ दिस असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, एंड नाउ आई विल आल्सो डिस्कस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो आपका बियरिश पैटर्न रहता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इट कैन बी बुलिश और बियरिश, असेंडिंग ट्रायंगल ओनली बुलिश, एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल ओनली बियरिश। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या आपका ओनली बियरिश। सो डिसेंडिंग ट्रायंगल, व्हाट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल? इन डिसेंडिंग ट्रायंगल यू कैन सी देयर इज वन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, जैसे असेंडिंग में था एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, वैसे डिसेंडिंग में क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है जो आपके लोअर लोज हायर लोअर हाइज बना रहे हैं, लोअर हाइज। ओके, यू कैन सी लोअर हाइज, इट इज मेकिंग लोअर हाइज, एंड देयर इज वन हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन व्हिच इज मेड इन दी सपोर्ट लाइन, जिसको अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है, वहां पे रेजिस्टेंस लाइन थी असेंडिंग ट्रायंगल में। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या है, आपकी एक सपोर्ट लाइन है, फ्लैट सपोर्ट लाइन है। तो स्टॉक आप देख रहे हैं यहाँ पे, द स्टॉक वाज टेकिंग सपोर्ट एवरी टाइम, द स्टॉक हैज टेकिंग सपोर्ट, और डिमांड एंड सप्लाई वाज बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट, एंड सडनली देयर वाज एन इम्बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस वेंट डाउन, इट गेव अ ब्रेकडाउन एंड प्राइस वेंट डाउन, उसके बाद प्राइस नीचे जाने लगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो बियरिश पैटर्न होता है, बट अगर इसके ऊपर बंद हो जाएगा तो प्राइस जो है वो पैटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट अ रिवर्सल पैटर्न, तो क्या होगा, प्राइस इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है,
तो स्टॉप लॉस आप सेम रख सकते हैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। ओके, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये सेल है तो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे या इस हाई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बंद हो जाता है देन यू कैन एग्जिट। If the previous trend is down, then also goes up ascending triangle. Ascending triangle आपका ये इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, जनरली ये अप ट्रेंड में ही बनता है, ठीक है। ascending triangle अप ट्रेंड में ही बनता है, इट्स एन कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, इट इज नॉट अ रिवर्सल पैटर्न वसंत जी, ठीक है। तो जनरली ये अप ट्रेंड में ही बनता है। डाउन ट्रेंड के लिए अगर आप देखेंगे तो उसके लिए देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न, जो आपका रिवर्सल पैटर्न जिसको अपने बोलते हैं, दैट इज अ वेज पैटर्न। ओके, falling wedge is a different pattern which is bullish pattern and reversal pattern, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में ही जनरली बनता है, अप ट्रेंड में ही अगर लेते हैं तो दैट इज बेटर। डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में बन नहीं सकता है, वो बन सकता है, बट ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी हाई होगा अगर ये अप ट्रेंड में बनता है असेंडिंग ट्रायंगल। ओके, और डिसेंडिंग सेम है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो आप बेटर है उस पर काम करें, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, सेम विद द डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके ओके, सो डिसेंडिंग ट्रायंगल मैंने जैसे कहा आपको, यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन, और यहाँ पे जब डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है इट गिव अ ब्रेकडाउन और प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। बट सपोज मान लीजिए कोई डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है, बट लोग पूछते हैं लाइक सर आप कैसे बताएंगे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है कि डाउन है। ओके, तो तब भी मैं फिर वापस से उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक सर, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट में, आप लोग प्लीज आंसर मी, व्हाट इज द जनरल ट्रेंड ऑफ द मार्केट एज ऑफ नाउ, एनी आंसर्स? नर्वस, बियर, हरी जी बियर्स, शिवाजी डाउन ट्रेंड, शिव शंकर जी अप ट्रेंड, एंड शिव कुमार जी डाउन ट्रेंड, जनक पंज अप ट्रेंड, रेंज बाउंड, साइडवेज डाउन, अप ट्रेंड, हितेश जी अप ट्रेंड, चंद्र जी अप ट्रेंड, रेंज बाउंड, ओके, अश्विन जी रेंज बाउंड, चंद्र जी अप ट्रेंड। ओके, सो लॉट ऑफ मिक्स्ड एंड मैच आंसर आई एम गेटिंग, दो जी, ओके, अनडिसाइडेड। तो जनरल ट्रेंड मार्केट का देखिए मेरे हिसाब से भी अभी अप है, मार्केट को डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, मार्केट मे बी एट हाई बट द ट्रेंड इज अप। अभी मार्केट आपका 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड इज अप, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ही है। करेक्शंस को वी कैन नॉट से इट इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। करेक्शंस होंगे मार्केट में, कोई ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, तो वहां से अगर थोड़ा करेक्शन देता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करेक्शन, एंड करेक्शन इज गुड फॉर अ हेल्दी मार्केट, देयर शुड बी अ करेक्शन, ठीक है। ऊपर में प्रेशर हो सकता है, ऊपर में प्रेशर बन सकता है कि ऊपर में प्रेशर है जावेद जी, देयर इज अ सेलिंग प्रेशर, लोग अभी थोड़ा क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड की वजह से अभी मार्केट रेजिस्टेंस पे है, बट ये रिवर्सल नहीं हुआ है, मार्केट ट्रेंड डाउन नहीं है, ट्रेंड इज अप ओनली। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज अप ओनली, ठीक है। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बुल मार्केट में 5 से 10% का करेक्शन इज नॉट अ बिग डील, इट कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है, जब स्टॉक इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी का भी एग्जांपल लेंगे, 2020 से 7,500 का निफ्टी अभी आज 22,000, डबल ट्रिपल हो गया, 3 टाइम्स। तो उसमें अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो व्हाट इज अ बिग डील, इट विल कम, एंड करेक्शन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, जो स्टॉक्स अपने नहीं बाय कर सके वो अपने को बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है, राइट। तो अप ट्रेंड में अगर मुझे कोई अपसाइड ब्रेकआउट में, एक मुझे असेंडिंग ट्रायंगल भी मिल रहा है, एक मुझे डिसेंडिंग, आई हैव टू ऑप्शंस, आई हैव एन असेंडिंग ट्रायंगल एंड आई हैव अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, दो स्टॉक ने मुझे स्टॉक्स दिए हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल पे काम करने के लिए, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पे, तो व्हाट शुड आई डू, मैं किस पे काम करूंगा, एनी आंसर्स? असेंडिंग, ओके, शिवाजी असेंडिंग, शिव कुमार जी असेंडिंग, ओके, अजय जी असेंडिंग, असेंडिंग असेंडिंग, जावेद जी असेंडिंग, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका परफॉर्मेंस ऐसे ही डिपेंड करेगा, अगर आपका ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अप है, आप असेंडिंग पे काम कर रहे हैं, दैट विल गिव यू एन एज, बट किसी ने डिसेंडिंग ट्रायंगल पे काम कर लिया, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड का अप है और वो रॉन्ग पड़ गया, और बोलेंगे सर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल तो काम नहीं करता है, यू विल से, बट जिन्होंने असेंडिंग ट्रायंगल पे काम किया होगा, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा, वो बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा काम करता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए
स्टॉप लॉस तब भी ट्रिगर हो सकते हैं। आप बुलिश मार्केट है, असेंडिंग ट्रायंगल भी लिए हैं, तब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं, बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट इज हायर। Hope you are understanding my point. I'm not saying that if you are buying ascending triangle in uptrend market, that stop loss will not get triggered. Okay, stop loss will get triggered, that even in that case also, but chances, the chances are less. The chances are higher that it will, hit a target. That's what I'm trying to say. आप कभी भी इसको मिस्टेक मत समझ लिया कि मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होना। मैं आप लोगों को कोई उसमें नहीं रखना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस आप ऐसा करेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। आप लोग को हमेशा स्टॉप लॉस मैनेज करना है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस इज अ शील्ड, ये आपको हमेशा बचाता है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू से यू समथिंग वेरी डीप इनसाइड कि कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो जो जो पूछते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, तो परफॉर्मेंस विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर एनालाइजिंग, ठीक है। So thank you, Shivaji, for your feedback. You have liked it. Okay. Shivaji and Shivji, I'm getting confused in both the names. One is Shiv Shankar ji and another is Shiva Kumar ji. Okay. So both have given in, what a coincidence. Both have given, the same feedback. Both are saying very insightful. Mr. Shiv Shankar ji is saying very insightful, and Mr. Shiv Kumar ji is saying thank you for the insight perspective. So also what a, it's what to say, it's matching. The name as well as the, the feedback is matching. Okay. So this is descending triangle. Okay. तो अब मैं वापस से चलता हूँ like to the stockage app where we can see some stocks. So ascending triangle का जैसे आपने देखा था यहाँ पे 12 जैन को बना था 839 एलेम्बिक फार्मा में, तो इट हैज गॉन अप, ठीक है। आई एम नॉट डिस्कसिंग टारगेट एंड स्टॉप लॉस एनीमोर बिकॉज इट इज सेम जैसे अपने ने पहले निकाला था। ओके, सो एलिकॉन इंजीनियरिंग 8 जैन को बना था 989। ओके, ये मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया है आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टॉक अचीव हो गया था, राइट। उसके बाद ये ऊपर गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए होंगे, राइट। सो इफ यू सी, अगर जिन्होंने ब्रेकआउट कैंडल के लो के हिसाब से स्टॉप लॉस रखा होगा इस कैंडल के नीचे, तो ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए ब्रेकआउट था, कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, राइट। और जिन्होंने इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा 942 का स्टॉप लॉस था, ठीक है, तो वो तो यहाँ आसपास कहीं पे क्या लो था इसका 920, यहाँ पे निकल गए होंगे, वो स्टॉप लॉस उनका ट्रिगर हो गया होगा। उसके बाद प्राइस और नीचे गया, राइट, उसके बाद प्राइस और नीचे गया, ठीक है। बट जिन्होंने इस कैंडल के लो के नीचे का क्लोज के नीचे रखा होगा उनका आई थिंक अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी भी स्टॉप लॉस बचा हुआ, दे आर इनटू द ट्रेड, वो ट्रेड बच गए होंगे। तो उन्होंने स्टॉक डीप स्टॉप लॉस लिया था, ज्यादा रिस्क लिया था, तो वो अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो जिनका कम स्टॉप लॉस था वो निकल गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डीप स्टॉप लॉसेस लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनका जिनका स्टॉप लॉस कम, जो कम रिस्क ले सकते हैं, वो बेटर हुआ उनके लिए, वो यहाँ पे निकल गए, उनको और डाउन साइड देखना नहीं पड़ा। तो वो और पैनिक में हो सकता है तो और नीचे बेचते, बट वो यहाँ पे निकल गए, नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, निकल गए। यू शुड रिस्पेक्ट बोथ योर स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट, जो भी मिले उसको आप सल्यूट करके लीजिए, देन ओनली यू विल सी प्रोग्रेशन इन योर मार्केट। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, वर्ल्ड का जो बेस्ट एनालिस्ट भी होगा उसके भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट दैट कि आपके स्टॉप लॉस या मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, बट अपने को ट्रेड जो है मैनेज करना है डिसिप्लिन के साथ, ओके। So this was a perfect example in which we can see that some stop losses has been triggered and some stop losses has not been triggered, okay. ये फिर आपका बोयोसिल रिन्यूअल आया था 3 जैन को। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इट हैज गॉन अप शार्पली, टारगेट अचीव करके देन अगेन इट इज कमिंग डाउन अपने, बट अपने ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे नहीं गए, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड अगेन इट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपने ले ली होती एंट्री और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखे होते तो आपको पूरा बेनिफिट मिला होता। आप
स्टॉप लॉस ट्रेल करके टारगेट से ओवर अचीव भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए अभी बोल लेना, चार्ट को देख के बोल लेना, इट्स अ वेरी इजी थिंग। ठीक है, मैं अभी जो हो चुका है उसके ऊपर बात करना इज अ वेरी इजी थिंग, बट वो कोई भी बोल सकता है। ठीक है, बट उस टाइम में रिएक्ट करना, उस टाइम में आपको कॉन्फिडेंस होना कि मैं ये स्टॉक लूंगा कि नहीं। जब यहाँ पे ये बोरोसिल बना था, ठीक है, तो उस टाइम में मैं ये स्टॉक लूंगा कि मेरे मन में डाउट आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। मैं यहाँ पे मैं क्या एक्शन लूंगा। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आप ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें हाँ ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी बड़ा है, मैं ट्रेड ले लूंगा, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा सिंपली। वो राइट हो रॉन्ग हो, आई डोंट नो, आइदर आई विल टेक अ स्टॉप लॉस और आई विल टेक अ टारगेट, दैट विल बी द थिंग। ठीक है, तो इसी हिसाब से किसी में टारगेट अचीव होगा, किसी में स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट अल्टीमेटली अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे तो यू विल इमर्ज एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, तो ये असेंडिंग था। देन देयर इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में जनरली आपका देखे होंगे, आपका ये बुल फेज में बना है, तो उसमें बहुत से आपके जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल उल्टा पड़ेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। तो मैं जो आपको बोलना चाह रहा था, अप ट्रेंड मार्केट, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जब से चल रही है, तो अप ट्रेंड मार्केट में अगर आप डिसेंडिंग पैटर्न्स खेलेंगे तो यू विल सफर अ लॉस। ठीक है, तो ये देखिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, स्टॉक का ब्रेकडाउन, बट ये थोड़ा नीचे जाने के बाद ये वापस से रिवर्स कर गया, वापस से रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे अगर किसी ने डिसेंडिंग ट्रायंगल में सेल किया होता तो उसका स्टॉप लॉस, कोई भी स्टॉप लॉस रखा होता तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता और वो ट्रेड से आउट हो जाता है। ठीक है, कोई भी ट्रेड के पीछे भागना नहीं है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लुक फॉर अनदर स्टॉक, अनदर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड वर्क इनटू इट। और कोई भी चीज को जज करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 to 20 ट्रेड्स करना होगा। अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल काम कर रहे हैं तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में 10 से 20 ट्रेड लीजिए। ठीक है, भले ही स्मॉल अमाउंट का लीजिए, जस्ट टू टेस्टिंग, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग करना और एक एक पैटर्न्स को लेके काम कीजिए, डोंट वर्क ऑन ऑल दी पैटर्न्स एक साथ। ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन सिमेट्रिकल, ऑन ट्रायंगल पैटर्न ओनली। ट्रायंगल में भी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे ही काम करूंगा। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं अभी सिर्फ बुलिश सिमेट्रिकल में काम करूंगा या बेयरिश में काम करूंगा, तो ये डिसाइड कर लीजिए, या मैं सिर्फ असेंडिंग ट्रायंगल में ही काम करूंगा। तो उसको करते करते व्हाट विल हैपन, यू विल मास्टर दैट पैटर्न। ठीक है, और थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए चार्ट पैटर्न में भी, कौन से स्टॉकेज में ऐसे चार्ट पैटर्न हुए जो अचीव किए टारगेट को या ओवर अचीव किए, कौन से पैटर्न्स ऐसे हैं अपना रिसर्च की जो फेल हुए हैं, बिकॉज आपको यहाँ पास्ट हिस्ट्री मिल जाएगा, बहुत से पैटर्न्स हैं जो फेल हुए हैं। तो उसमें आप देखिए क्या ऐसा हो सकता था जो मैं बच सकता था उसमें। यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस। तो व्हाट स्टॉकेज इज डूइंग, आपको एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पे आपको इतने हजारों स्टॉक में से वो आपको स्टॉक फिल्टर करके दे देगा, भाई इसमें कौन सा पैटर्न बना है, एंड दैट इज अ वेरी यूनिक पैटर्न। नो अदर प्लेटफॉर्म इज गिविंग दिस पैटर्न। यू नो, मैं यही सबको बोलता हूँ, भाई मुझे तो अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है प्लेटफॉर्म जहां मिल रहा है। इवन द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव द ब्लूमबर्ग सॉफ्टवेयर इज नॉट गिविंग दिस, यू नो, फीचर ऑफ चार्ट पैटर्न। ठीक है, इफ एनीबडी नोज अबाउट इट प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर इट। तो कोई और भी बना सकता है, ऐसा नहीं नहीं बना सकता है। लाइक दे आर, अब एक बार चीज मार्केट में आ जाने के बाद वो कॉपी हो सकती है, राइट, तो बन सकता है। ये अभी नहीं है, बट अभी तक मेरे नजर से नहीं गुजरा है। मे बी इट इज हैपनिंग और मे बी आ गया मार्केट में, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड, मतलब एक अच्छा चीज मिलता है जिससे आपको एटलीस्ट फिल्टर करके दे रहा है। 80% आपका काम यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है कि आपको फिल्ट्रेशन मिल जाए, आपको एक एक स्टॉक में जाके देखना नहीं होगा। विद इन अ क्लिक ऑफ द माउस यू आर एबल टू नो विच स्टॉक हैज फॉर्म विच पैटर्न, राइट। तो ये था असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, अब मैं देयर आर मेनी अदर पैटर्न्स, तो मैं एक और पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपके क्या थे, कंटिन्यूएशन पैटर्न थे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और असेंडिंग डिसेंडिंग, दीज आर कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, so hope you all are enjoying the session and liking it and gaining some knowledge from it. ओके, शॉर्ट टर्म में बेयरिश में कैसे पैसा बनाए। बेयरिश में सेल करके बनता है पैसा,
दैट इज फॉर यू हैव टू गो फॉर फ्यूचर मार्केट, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना होगा उसके लिए, डेरिवेटिव्स विच इज वेरी रिस्की, ठीक है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना। तो आई विल से दैट बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में नहीं देना चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शंस आर वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि आपका उसमें बहुत ज्यादा वो बढ़ जाता है, लेवरेज बढ़ जाता है। तो अगर आपका रिस्क कैपेसिटी कम है तो यू शुड नॉट गो इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। या अगर आप फुल टाइम है देन मार्केट में है देन ओनली यू शुड गो, ठीक है। दूसरा है आप अपना प्रॉफिट, अगर आप ऑलरेडी डीपी में है, अगर आपको लगता है बेयरिश है या स्टॉक नीचे जाएगा तो आप अपना वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टॉक। देयर इज नो शॉर्टकट इन द मार्केट। On what basis it is said that market is in uptrend? जनरल कृष्णा जी, जनरल मार्केट को कभी अप ट्रेंड का जो परफेक्ट डेफिनेशन है, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है या कोई भी इंडेक्स चल रहा है, 200 डे के ऊपर चल रहा है, द ट्रेंड इज कंसिडर्ड अप, दैट इज अ जनरल ट्रेंड। अगर 200 के नीचे चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मूविंग एवरेज के हिसाब से है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए कोई देखता है 20 डे मूविंग एवरेज, कोई देखता है 50 डे मूविंग एवरेज, बट जनरल मेजर ट्रेंड ऑफ द मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज डिसाइडेड बाय 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। ओके कृष्णा जी, होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। ओके, एक साथ कितने ट्रेड ओपन रखे, दैट अगेन दिस क्वेश्चंस आर डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आप कितना रख सकते हैं, ठीक है। एक साथ आप 5 से 10 रख सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो कर रहे हैं तो मैक्सिमम अपने स्टॉक में पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो 20 से 25 से ज्यादा स्टॉक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 8 से 10 स्टॉक तक रख सकते। दिस इज ऑल वेरी इंडिविजुअल काइंड ऑफ थिंग। आप कैसे, ये मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है, इसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकता हूँ। मैं 10 स्टॉक मैनेज कर सकता हूँ, कोई 15 कर सकता है, कोई 20 कर सकता है, तो वो है। तो जनरल मैं सोच है कि 20 से 25 आपका अगर इन्वेस्टमेंट आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पोर्टफोलियो, तो 20 से 25 से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म आप कर रहे हैं तो आप 10 मैक्सिमम 5 से 10 स्टॉक्स तक में ट्रेडिंग कीजिए शॉर्ट टर्म फोकस करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज माई, तो आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट माई थॉट ऑन योर थॉट्स। आपको जो सुविधा लगे आप उसी हिसाब से काम कर सकते हैं, ओके। ओके, कितना ट्रेड ओपन रखे हो गया, एबीसीडी पैटर्न हाउ टू वर्क। एबीसी पैटर्न अलग है, वो अलग चार्ट पैटर्न है, वो अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अभी डिस्कसिंग ऑन एबीसी पैटर्न। राहुल शर्मा जी, ठीक है, ओके। सो सो ट्रायंगल पैटर्न, आई कंप्लीटेड ट्रायंगल पैटर्न, ओके। नाउ आई मूव टू अ वन रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस सबका, ठीक है। तो head and shoulder pattern is a reversal pattern and inverted head and shoulder pattern is also a reversal pattern. Reversal pattern, head and shoulder आपका अप ट्रेंड में बनता है, मतलब अप ट्रेंड से स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, नहीं भी जा सकता है, ओके। एंड डाउन ट्रेंड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब, या बुलिश हेड एंड शोल्डर मतलब डाउन ट्रेंड से ऊपर जाने का, ये डाउन ट्रेंड रिवर्सल होगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ओके। तो ये पैटर्न कैसे बनता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है आपका, इसमें 4 चीज इन्वॉल्व है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। फर्स्ट इज द लेफ्ट शोल्डर, ये है, इसको बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, ये अप ट्रेंड में बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देन देयर इज वन हेड एंड देयर इज राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड हेड। तो जैसे अपना हेड और 2 शोल्डर होता है, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड वन देयर इज अ नेक लाइन, दिस कॉल्ड नेक लाइन। तो ये पैटर्न में 4 चीज इन्वॉल्व है, ठीक है, 2 शोल्डर, एक हेड और एक नेक लाइन, ठीक है। तो जब भी स्टॉक इस नेक लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, ठीक है, इस नेक लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, तो क्या होता है, वो आपका हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। तो अपने स्टॉक एज में अभी क्या है, आपको निकाल के दे देवे कि हेड एंड शोल्डर बना है, बट इसको अपने कैसे और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, बिग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है,
तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अभी स्टॉकेज में ऐसा नहीं कि वॉल्यूम के साथ आएगा तभी ये आएगा, अगर ये बिना वॉल्यूम के भी अगर नीचे क्लोज हो जाएगा तो आपका फिल्ट्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको दो स्टॉक्स मिल रहे हैं हेड एंड शोल्डर में, एक वॉल्यूम के साथ नेक लाइन के नीचे क्लोज किया है, एक बिना वॉल्यूम के साथ नेक लाइन में क्लोज किया है, तो यू विल गो फॉर द ब्रेकडाउन विथ वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकडाउन हुआ है उसमें आप जाएंगे, ठीक है, अगर दो में एक चूज करना है तो, ठीक। तो नाउ यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हो गया, नाउ हाउ आई टेक द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ओके ओके ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिख रहा आप लोगों को, आई थिंक आई हैव टू चेंज द स्क्रीन, सॉरी। अभी सबको दिख रहा है ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न? ओके, सो मैं वही बोल रहा था कि इसमें एक चार चीज से बनता है, दैट इज वन लेफ्ट शोल्डर, ओके, राइट शोल्डर एंड द हेड, ओके, एंड दिस इज द नेक लाइन। तो कोई भी स्टॉक अगर नेक लाइन के नीचे बंद हो जाता है तो आपको स्टॉकेज में फिल्ट्रेशन आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि अगर ब्रेकडाउन हुआ है, नेकलाइन के नीचे बंद हुआ है, और एक स्टॉक विथ वॉल्यूम ब्रेकडाउन हुआ है और एक स्टॉक लेस वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो आई विल प्रेफर ब्रेकडाउन विथ लार्जर वॉल्यूम। जो ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है मैं उसके साथ जाऊंगा, ना कि जिसके साथ कम ब्रेकडाउन कम वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। स्टॉकेज आपको दोनों फिल्टर दे देगा अभी के लिए, कि वो दोनों जिसमें वॉल्यूम के साथ हुआ है वो भी दे देगा और जिसमें वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ है वो भी दे देगा। बट आपको वहां पे अपना रिसर्च करके और एनालाइज करके लगाना है कि मुझे जिसमें वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम के साथ दिया है मैं उसमें ट्रेड लूंगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। ना हाउ यू विल शेयर द टारगेट, हाउ यू विल ऐड द टारगेट, तो इसका टारगेट कैसे निकालते हैं, ये हेड, ओके, ये हेड और ये जो नेकलाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं। सपोज यहाँ का जो हेड है वो 300 पॉइंट्स, ये यहाँ का जो प्राइस है हेड का 300 है, ओके, और ये बेस का प्राइस है से 250, ये बेस है मेरा 250, राइट। तो 300 माइनस 250 कितना हो गया, 50 रुपीज, ठीक है, और ये 250 माइनस 50 200, तो मेरा टारगेट आ जाएगा 200 रुपीज का, ओके। तो 200 रुपीज का मेरा टारगेट आ जाएगा। तो अगर मेरा टारगेट 200 रुपीज का आ गया तो अगर मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपीज का आएगा, 100 रुपीज का आएगा, दैट इज द वन वे, ओके। फिर इसका सेकेंड वे है कि मैं ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे, ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा। और थर्ड जो लास्ट ऑप्शन आप रख सकते हैं, ये शोल्डर के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। अगर शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग दे देता है प्राइस तो दैट इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस विच यू कैन पुट इन द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, क्लियर। ये शोल्डर्स दोनों इक्वल हाई भी हो सकते हैं, ये हाई और ये हाई इक्वल भी हो सकता है, अगर ये हाई थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है और ये हाई थोड़ा इससे लोअर भी हो सकता है, राइट। तो अगर लोअर है तो दैट इज अ बेटर, वो आपको ज्यादा, तो ये अलग और हो गया, वो ज्यादा फेवर देगा ब्रेकडाउन में। इक्वल हाइज या लोअर है वो आपको ज्यादा कंफर्मेशन देगा कि ये ब्रेकडाउन जो है नीचे कंफर्म होगा, ओके। तो ये सब भी छोटी छोटी सी बातें हैं जो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ओके। बट वो तीनों वैलिड है, या लोअर से बने या हायर से बने या इक्वल से बने, ठीक है। बट वही बात आ जाती है कि मैं कौन सा चूज करूं, ओके। अगर ये शोल्डर इक्वल या लोअर है वो अगर मैं वो चूज करता हूँ दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, ओके। तो ये था हेड एंड शोल्डर। इसी के साथ ही इसका उल्टा होता है बुलिश हेड एंड शोल्डर, ठीक है, बुलिश या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इसमें यू कैन सी दिस इज इन्वर्टेड, ये उल्टा है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है, जैसे कि बुलिश अप एंड बुलिश या सॉरी हेड एंड शोल्डर आपका अप ट्रेंड में बनता है, वैसे ये आपका डाउन ट्रेंड में बनता है, दिस इज फॉर्म्ड इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड दिस इज अ हेड, ठीक है। यहाँ पे जब नेक लाइन के ऊपर बंद हो जाता है एंड यू कैन सी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो वो आपका ब्रेकआउट कंफर्म्ड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट, और इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, ये लो, इस इधर का जो लो होगा और ये जो हाई होगा इसका डिफरेंस, सपोज यहाँ पे का प्राइस 300 है और यहाँ का 250 है, दैट इज 50 रुपीज। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है 300 प्लस 50 तो 350 का मेरा टारगेट हो जाएगा, ओके। अगर 50 रुपीज का स्टॉप टारगेट आ रहा है तो मैं स्टॉप लॉस 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रखूंगा, मैं ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, या लास्ट में इस शोल्डर के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। सो स्टॉप लॉस ऑलवेज डिपेंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बट स्टिल देयर आर सर्टेन वेज बाय व्हिच यू कैन
fixed stop loss. Chart patterns generally don't give stop losses, they give target. Okay, तो ये क्लियर हो गया. सो आई जस्ट टेक यू नाउ टू द स्टॉकेज ऐप एंड वहां पे अपने हेड एंड शोल्डर कुछ पैटर्न्स देखते हैं. तो रिसेंट में लेट्स सी, रिसेंट में कोई स्टॉक है, रिसेंट में एक ही स्टॉक आया है, वो बुलिश हेड एंड शोल्डर में, शॉपर स्टॉप. ठीक है, शॉपर स्टॉप आया है 29 जैन को, बट स्टिल वहां पे प्राइस अगर देखेंगे तो आसपास ही है. तो आई थिंक इट हैज नॉट परफॉर्म दैट वेल. तो यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था, राइट, और यहाँ पे उसके बाद एक रेंज में चला, इट टुक रेजिस्टेंस यहाँ पे एंड यहाँ पे वो उसके बाद नीचे आया. तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा तो क्या मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ. तो अगर आप देखेंगे इस कैंडल के लो के नीचे 699 का लो था, राइट. तो 699 के अभी तक प्राइस एक बार नीचे भी क्लोज नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे लो था 686 का था, बट क्लोज हुआ प्राइस यहाँ पे क्या था 697, और यहाँ का लो था 699. हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस, जिन्होंने ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लिया होगा उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, जस्ट नीचे. बट अगर कुछ फिल्टर लगाया है आपने आसपास, क्योंकि और भी लेवल्स है, अगर मान लीजिए इसके नीचे रखा है तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी बचा हुआ है. ठीक है, तो ये एक है. जिन्होंने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ है अभी भी उनका स्टॉप लॉस बचा है एंड दे आर इनटू द ट्रेड. ओके, तो ये आपका बुलिश हेड एंड शोल्डर था. ठीक है, तो ये अभी तक एक ही पैटर्न दिखा हुआ है जो कि इट हैज नॉट परफॉर्म दैट वेल. ठीक है, और अभी ये कुछ दिन बाद हमको लगता है ये वापस से आपका उसमें पास्ट में चला जाएगा. तो पास्ट में अपने देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर 28 नवंबर को आया था, दैट इज इन द पास्ट. तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने और उसके बाद टारगेट को बहुत ओवर अचीव करके बहुत ऊपर चला गया. तो अपने तो उतना वेट नहीं करेंगे कि मैं यहाँ तक आ गया. अपने तो टारगेट अचीव आएगा, टारगेट बुक कर लेंगे, राइट. या फिर अगर पूरा रन को लेना है तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, राइट. सो यही है कि आपके इसमें टारगेट्स भी अचीव होंगे, स्टॉप लॉसेस भी अचीव होंगे. तो ये रेलटेक में भी आपका देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इट हैज टारगेट को बहुत ओवर अचीव करके ऊपर चला गया. टारगेट अगर हम लिए होते तो मेरा तो टारगेट अचीव हो गया होता यहाँ आसपास में कहीं पे, राइट. तो द थिंग इज कि देखिए टारगेट भी अचीव होंगे, स्टॉप लॉसेस भी अचीव, दोनों हिट होंगे. तो आपको मैनेज करना है ट्रेड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आपको स्ट्रेस ज्यादा नहीं लगाना है टारगेट और स्टॉप लॉस पे. अगर आप ट्रेड मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप थोड़े अमाउंट से यू स्टार्ट. ठीक है, यू स्टार्ट एंड सी हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म. थोड़ा टाइम देना होगा. स्टॉक मार्केट में सब लोग घुसते हैं ये सोच के दैट इट इज वेरी इजी टू अर्न मनी इन द मार्केट. इट इज नॉट दैट इजी. इट इज एज टफ एज क्रैकिंग एन IIT और बिकमिंग अ डॉक्टर or doing an MBA course from IIMs. It is as much tough as that. तो क्या आपको लगता है कोई IIT इतनी आसानी से कोई भी आके पास कर जाता है या IAS ऑफिसर ऐसे ही बन जाता है? It take time, and lot of effort to become that, lot of studies. So same way stock market is not like that. To become a champion or cream आपको अगर बनना है for stock market, you have to give lot of time, lot of practice. ठीक है, lot of research आपको वैसे ही करना होगा. लोग सोचते हैं जस्ट मार्केट में घुसे पैसा कमा लेंगे, पैसा लगता है मार्केट में उड़ रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. अगर कोई ये सपना देख के आता है देन इट इज नॉट मार्केट फॉर यू. इफ एनीबॉडी इज थिंकिंग लाइक दैट कि मैं एकदम यहाँ से बना लूंगा, मल्टी मिलियनियर बन जाऊंगा, 10,000 लगा के मैं 10 लाख कमा लूंगा. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट. सो आई थिंक टाइम को मैं ज्यादा हो गया है. ठीक है, 7 बजे का था टाइम था, तो वी शुड end the session. Okay, so I think we can continue chart pattern next. Yeah, the Shiv ji, ये चलता रहेगा patterns आपका. Every Saturday we are doing chart pattern session. Okay, every Saturday.
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सा चीज रिपीटेड मिलेगा, दैट आपका रिविजन हो जाए एंड आई विल कम विद समथिंग न्यू आल्सो, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस सेशन, होप यू ऑल लाइक दिस सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम and I wish you all a very, happy weekend and a profitable week ahead. Okay. So follow the, strategies. Okay. Good luck. See you next week. Okay. So I am ending this session.